عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو وہ قربانی سے بھی جو پیارا نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو وہ قربانی سے بھی جو پیارا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے مویشی منڈی اور آج ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر مختلف اقسام کے جانور موجود ہیں. جی ہاں، ہم آپ کو چھوٹے جانور بھی دکھائیں گے، بڑے جانور بھی دکھائیں گے، ہم آپ کو جانور کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن ہماری شرعی رہنمائی کے لیے ایک نہیں بلکہ دو مفتیان اکرام ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مفتی شفیق اتاری مدنی اور مفتی سجاد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آئیے چلتے ہیں پہلے مفتیان اکرام کی طرف اور پھر بڑھیں گے سوالات کی طرف. یہاں پر بہت سارے حاضرین بھی موجود ہیں اور مختلف سوالات بھی ہوں گے. ہم آپ کو جانوروں کے بارے میں بھی بتائیں گے، کیسے جانور قربانی کیے جا سکتے ہیں، کن جانوروں کی قربانی منع ہے. آج میں نے آپ کو انشاءاللہ یہ بھی مفتی صاحب سے پوچھ کر بتانا ہے. آئیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. عید قربان عید قربان عید قربان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ دونوں کی ہمیں برکت نصیب فرمائے. مفتی صاحب، آج ماشاءاللہ ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں پر تینوں اقسام کے جانور موجود ہیں. یوں کہا جائے چھوٹے جانور بھی موجود ہیں، بہت بڑے جانور بھی موجود ہیں. سب سے پہلے مفتی صاحب ہماری یہ رہنمائی فرمائیں، کیا اس مینڈے کی قربانی جائز ہے؟ چار سینگ ہونا یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے حسن میں اور خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے. اچھا جی ہاں، تو اگر چار سینگ ہیں، جیسے یہ دیکھیں یہ والا باوی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ. چاند جو ہے نا چاند کی طرح اس کے سینگ ہیں، تو ان میں کوئی کسی طرح کا مذائقہ نہیں ہے اور بالکل جو ہے وہ ان کی قربانی ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مینڈا تلاش کرنے کا جیسے حکم فرمایا جو سیاہی میں رات میں چلتا ہو دیکھتا ہو. اچھا، تو میں فرمایا جس کی آنکھیں جیسے کالی ہیں نا یہ، اور یہ یعنی اس کا نیچے والا آگے حصہ جو ہے یہ بھی جیسے بلیک ہو، ٹھیک ہے، اور پاؤں بھی بلیک ہونا. یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مینڈے جس طرح کی تلاش کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی کرو. اچھا. تو ماشاءاللہ میر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ فرمایا کہ ایک دفعہ ہم باقاعدہ منڈی میں اتنے جانوروں کو تلاش کیا، ہم وہی کے جو خاص حدیث پاک میں فرمایا گیا. ویسے تو کوئی بھی قربانی کے قابل ہیں اور ماشاءاللہ یہاں جتنے حسین اور خوبصورت یہ جانور ہیں، اور اللہ پاک قبول فرمائے سب. چلیں ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا مینڈا یا دمبا تلاش کرنے کے حکم ارشاد فرمایا ہے اس کے حوالے سے آپ نے رہنمائی فرمائی، لیکن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک گلے کے نیچے اس کو جھالر کہیں گے یا کیا کہیں گے، ذرا ہم ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ. آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم. آپ کیا نام ہے آپ کا؟ سلمان. سلمان بھائی. سلمان بھائی، یہ بتائیں کہ یہ جو مینڈے کے گردن کے نیچے اتنا بڑا حصہ لٹک رہا ہے، یہ کیا چیز ہے اس کی؟ یہ جھالر ہے مول. اچھا، تو یہ کس چیز کی جھالر ہوتی ہے؟ عام دمبوں میں، عام بکروں میں یا عام بکریوں میں یہ نہیں دیکھی جاتی؟ نہیں، عام میں نہیں ہوتی ہے، کسی کسی جانور میں ہوتی ہے. وجہ کیا ہے اس کی ہونے کی؟ کیا اس کی نشو نما ایسی کی گئی ہے یا اس کو کوئی ایسا کچھ کھلایا گیا ہے؟ اس کا قدرت ہی ہے مولانا صاحب جی، قدرت نسل کا فرق ہوتا ہے. اچھا، نسل کا فرق ہوتا ہے. مفتی سجاد صاحب سے پوچھیں گے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کی نسل کا فرق ہوتا ہے یا اس کی اسپیشل کیئر کی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے، تو اس کو عیب میں شمار کریں گے یا خوبصورتی میں شمار کریں گے؟ یہ کوئی عیب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی افزائش یا خاص قسم کا کھانا کھلایا گیا، صحیح، بلکہ یہ نسل میں ہے، یہ یعنی اس کے جسم کا پارٹ ہے. صحیح. جیسا کہ یہ دمبے کی چکتی ہے اور عام جو ہے وہ بکریاں ہوتی ہیں ان کی دم ہوتی ہے، صحیح. لیکن دم اور چکتی میں فرق ہے، یہ اس کا حصہ ہے، نیچرل ہے یہ. تو یہ کوئی عیب نہیں ہے
बल्कि ये इसकी यूं समझे कि जिस्म का हिस्सा और हुस्न है ये। चले ये इसकी खूबसूरती का एक यूं कहा जाए कि इजाफा है और इसके जिस्म का पार्ट है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो आपने आज आपकी जबान से मैंने नया लफ्ज सुना है, चक्की, जिसे आपने कहा, उर्फ आम में से चक्की कहा जाता है, तो असल सही वर्ड क्या है, ये हमारे रहनुमाई फरमा दें। देखिए उर्दू में इसको चकती कहा जाता है। चक्की, जी तायती, जी, तायती। और आम उर्फ आम में लोग इसको चक्की कहते हैं, चक्की कहते हैं, और चक्की वाला मशहूर होता है, सही, लेकिन जो असल लफ्ज है वो चकती है। चक्की है। चलें जी, माशाल्लाह खूबसूरत जानवर लिए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि अच्छे से अच्छा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इंसान जो है वो राह खुदा में जानवर कुर्बान करे। चलें जी, चलते चलते एक बड़ा ही खूबसूरत जानवर नजर आया है। इस जानवर की यूं कहा जाए कि उम्र कितनी है, कद तो बहुत छोटा है, उम्र के बारे में भी पूछेंगे और इसकी स्पेशलिटी क्या है, बड़ा खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई? ये बताइए कि ये बड़ा छोटा सा जानवर है, इसकी एज कितनी है और ये स्पेशल नस्ल है या क्या नस्ल? हाँ, स्पेशल छोटी नस्ल है ये, ठीक है, और माशाल्लाह ये 2 दांत ही है, ठीक है, सारे 2 दांत है, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सारे फार्म पे पले हुए हैं माशाल्लाह। चलें जी, आपने बड़ी जबरदस्त यूं कहा जाए कि कलेक्शन जमा की है। मुफ्ती साहब से भी इंशाल्लाह हम इस बारे में सवाल करेंगे, लेकिन ये इस नस्ल को क्या कहा जाता है, एक और भाई से पूछते हैं, ये शायद यहाँ पर केयर के लिए खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का क्या नाम है भाई आपका? अली अहमद। अली अहमद भाई। अली अहमद भाई बताइए इस नस्ल का नाम क्या है? ये तो गुलाबी में, छोटे मिक्स गुलाबी में। मिक्स गुलाबी, हाँ। नस्ल का नाम क्या है? नस्ल इसका टापरा है। टापरा। लेकिन ये हिरन जैसी लग रही है, इसकी क्या वजह है? हाँ, ये तो है, ये नस्ल है, इसे नस्ल में ही होता है, ऐसे छोटा अच्छा। नस्ल। हिरन जैसी तो वहाँ खड़ी है, और अच्छा, हिरन जैसी आगे खड़ी हुई है। मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि इतने छोटे जानवर की कुर्बानी हो भी जाएगी या नहीं होगी? जी मुफ्ती साहब। देखें, उम्र पूरी होना, बकरा बकरी में साल पूरा होना, सही, और जैसे भाई बता रहे हैं कि ये पूरे 2 दांत का है, तो 2 दांत का है तो इसका मतलब ये इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, यही एक करीना है हमारे पास। सही, तो साल पूरा हो जाना, ये बकरा बकरी में बज़ाहिर तो ये छोटा लग रहा है इस तरीके से, लेकिन अपनी उस खूबसूरती में ये है, क्योंकि बाद बकरे भी होते हैं कि जिन्हें वो टेडी बकरा कहते हैं, जी। और इनको ये क्या कह रहे हैं, टापड़ा बकरा। टापरा। हाँ, तो ये अपनी उसके एतबार से तो इनकी खूबसूरती यही है, तो बहरहाल कुर्बानी हो जाएगी, साल उम्र पूरी है। माशाल्लाह। अच्छा, बकरी को प्यार करने के, उसके सर पर हाथ फेरने के, उसके जिस्म पर हाथ फेरने के फजाइल भी बयान हुए, क्या ये छोटी बकरी पर भी हाथ फेरेंगे तो सवाब मिलेगा मुफ्ती साहब? जी बिल्कुल, जिस बकरी पर हाथ फेरेंगे इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। क्या बात। बकरी शरीफ जानवर है और जन्नती जानवर कहा गया है इसको, अरे वाह, तो इसलिए ये तो वैसे ही बहुत इतनी शफीक क्यूट है माशाल्लाह, जी, देखते ही प्यार करने का दिल चाहता जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चे बकरों के साथ, बकरियों के साथ बहुत ज्यादा जो है वो एंजॉयमेंट करते हैं, तो कुछ बच्चों के भी सवाल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन, क्या करने आई है यहाँ पर? बकरे देखने आए हैं। बकरे देखने आई हैं। अच्छा, हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, कोई सवाल करना चाहेंगी? जी। क्या? क्या हम बकरे पे बैठ के सवारी कर सकते हैं? जी मुफ्ती साहब, ये बताइए, क्या बकरे पर बैठकर बच्चे सवारी कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि बकरा ईद के अंदर एक बड़ा शोर होता है, गली मोहल्लों में ये बकरे आते हैं और बच्चे इसके साथ बड़ा एंजॉय करते हैं। बताइए, क्या बकरों पर बैठकर राइड ली जा सकती है? नहीं। जी, बकरे जो है ये कुर्बानी के बेटा जानवर हैं, और जो कुर्बानी का जानवर होता है उसकी इज्जत और एहतराम करना होता है, और ये जानवर बरोज़े क़यामत हमारी बख्शिश का जरिया बनेगा। अरे वाह, इसको तकलीफ नहीं देनी, इस पर सवार नहीं होना, बस इसको अल्लाह के राह पर कुर्बान करना है। ना इसको छेड़ना है, ना इसके ऊपर बैठना है, ना इसको डंडे मारने हैं, ना इसकी जो है वो रस्सी खींचनी है, ना कान खींचने हैं। देखे ना कि अगर हमारे कोई कान खींचे, हमारे ऊपर कोई सवार हो जाए, हमें जिस तरह तकलीफ होती है इसी तरह जानवरों को भी तकलीफ होती है। कुर्बानी का जानवर हो या कुर्बानी का ना हो, भेड़ बकरियां, ये जो इस तरह के जानवर हैं, ये बैठने के लिए नहीं है, राइड के लिए नहीं है, ये बस अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने के लिए है, लिहाजा इनका एहतराम किया जाए। चलें जी, मुफ्ती साहब ने बड़े तफसील के साथ हमें बताया है कि इनका अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। मुफ्ती साहब, थोड़ा सा आगे चलते रहेंगे और कुछ जानवर भी देखते जाएंगे, अल्लाह की हम्द और तस्बीह भी बयान होती रहेगी, क्योंकि माशाल्लाह इतने खूबसूरत और बड़े ही यूनिक यहाँ पर जानवर मौजूद हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। मुफ्ती साहब, आपने तो 4 सींगों वाले मेंढे के हवाले से बताया, यहाँ तो 6 सींग नजर आ रहे हैं। क्या 6 सींग वाले मेंढे की भी कुर्बानी हो जाएगी? हो जाएगी कुर्बानी इसकी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब, ये 6 सींग इसके?
ये भी जानवर के अंदर एक खूबसूरती में इजाफा ही है। अगर किसी के ज़ाहिर है इसकी कीमत आप देखें तो ताजरों के नजदीक बहुत ज्यादा है किसी स्पेशल कीमत पर और बिकता तभी है। तो इसको खास तौर पे लाके एक नुमाया रखा गया है कि ये एक अलग से जानवर है। सही, तो ये ऐब नहीं है बल्कि एक खूबसूरती में इजाफा हुआ है। खूबसूरती में इजाफा हुआ है, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह मुफ्ती साहब, ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत और जानदार और यूं कहा जाए कद काट में भी पूरा। क्या हर दुम्बे का साइज इतना बड़ा हो तभी कुर्बानी होगी या छोटे दुम्बे की भी हो जाएगी? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो दुम्बा है बिल्कुल बैल की मिसल एक तरह का। अरे वाह, तो क्या बात देखिए दुम्बा और दुम्बा, भेड़, मेंढा, इनमें जो कुर्बानी है वो तो अगर 6 महीने का भी हो और वो अपने मिसल जानवरों में या दूर से नजर आए साल भर का लग रहा है सही। तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, बकरा बकरी में अगर एक दिन भी कम है इस्लामी साल के मुताबिक, अगर एक दिन भी कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। सही। उसकी साल पूरा होना जरूरी है, इसलिए उसमें 2 दांत देखते हैं बकरे के अंदर, क्योंकि 2 दांत जो होते हैं तो फिर एक करीना है कि साल पूरी हो चुकी है। दुम्बे भेड़ में इसकी भी हाजत नहीं पड़ती और ये तो वैसे ही माशाल्लाह 3 साल का लग रहा चले है। माशाल्लाह। अच्छा, पिछले हम जब मवेशी मंडी गए थे वहां मुफ्ती साहब एक बात सीखने को ये मिली थी कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं कि जो 2 साल पूरे नहीं होते, 20 माह के अंदर, बड़े जानवरों की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े जानवर 20 माह के अंदर दांत निकाल लेते हैं, उनके 2 दांत पूरे हो जाते हैं। तो वहां पर भी ये सवाल मैंने पूछा था कि ऐसे हम उर्फे आम में लोगों के अंदर ये मशहूर है कि 2 दांत होंगे तो वो 2 साल का हो जाएगा। अब ऐसे जानवर के जो 20 माह के हैं और उन्होंने 2 दांत निकाल लिए हैं तो हमें पता नहीं है, अगर ऐसा जानवर किसी ने खरीद लिया तो उसकी कुर्बानी का क्या हुक्म है? जी, अगर बड़े जानवर की उम्र 2 साल होना जरूरी है। सही। अब उसके 2 साल कैसे हमें पता चलेगा? जी। उसके 2 तरीके हैं। एक तो उसकी अलामत है दांत के जरिए। सही। तो आम तौर पर जब दूध के दांत गिर जाते हैं तो उसके बाद जो दांत आते हैं तो ये उस वक्त गिरते हैं कि जब 2 साल उम्र पूरी हो चुकी होती है। तो अब अगर हम मंडी में खरीदने गए हैं तो हम इसी अलामत ही को मियार बनाएंगे। सही। और दूसरी बात ये है कि अगर घर में पला हुआ है, अगरचे कि इसने 20 माह में दांत गिरा दिए हैं, सही। वो किसी और वजह से भी गिर सकते हैं, जी। लेकिन हमें पता है कि इसकी उम्र जो है वो 2 साल से कम है तो कुर्बानी नहीं होगी। सही। कुर्बानी के लिए 2 साल होना जरूरी है, सही। क्योंकि दांत गिरने की भी मुख्तलिफ वजूहात होती जी हैं। जी जी। बाज़ औक़ात घास वगैरह चरते हैं, जी, उससे गिर जाते हैं। ऐसा सख्त चारा जी। दे दी खिलाया जाता है जी, कि जी। जिसकी वजह से दांत जल्दी गिर जाते हैं। जी, तो इसलिए अगर 2 साल से पहले गिर गया, हमें पता है जैसे घर में पला हुआ है, तो फिर 2 साल की उम्र उसकी पूरी होना जरूरी है। चलें, ताजिरों को भी यहाँ पर सब रहनुमाई देंगे या उनसे भी कहेंगे कि थोड़े से प्रॉफिट के लिए आप लोगों की कुर्बानी से बिल्कुल ना खेलें, बल्कि मशवरा यही है कि ऐसा कोई जानवर आप मंडी में लाए ना जो लोगों के लिए परेशानी का बाइस हो। चलें, इस मेंढे की स्पेशलिटी के हवाले से हम पूछते हैं कि इसकी क्या स्पेशलिटी है? ये इसकी नस्ल माशाल्लाह टर्की की है और बहुत तंदुरुस्त है, बेहतरीन अच्छा, जानवर टर्की से ये आया है यूं? इम्पोर्ट हुआ है। क्या बात है जनाब, टर्की का दुम्बा है और बड़ा ही खूबसूरत दुम्बा है। सुभान अल्लाह। एक और बड़ा ही खूबसूरत हमें मेंढा नजर आया है, मेंढा कहेंगे, दुम्बा कहेंगे। ये एक ऐसा दुम्बा है कि जिसकी पूंछ गाय नुमा है और यूं कहा जाए कि बहुत लंबी दूम है। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, ऐसा जानवर जिसकी दूम इतनी बड़ी हो, इस जानवर की कुर्बानी भी जायज है? जी बिल्कुल जायज है। ये तो अल्लाह पाक की खास कुदरत है। आप देख लें सुभान अल्लाह, कि नस्ल के एतबार से जिसामत में भी फर्क है। वैसे यहाँ पाकिस्तान में ऐसी दुम वाला किसी ने देखा नहीं होगा। ये भी यूनिक है और अल्लाह पाक की कुदरत है कि चीज एक है लेकिन वैरायटियां कई क्या हैं। बात है, क्या जिस बात तरह है। इंसानों में जो है वो कई वैरायटियां, इसी तरह जानवरों जिस में तरह कई इंसानों वैरायटियां में कई शक्लें होती हैं, कई सारे नक्शो नुगार होते हैं, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों के अंदर भी अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ इकसाम पैदा किए हैं। अगर इसकी खाल पर इसके बाल की बात की जाए, मुफ्ती साहब इसके बाल पर हाथ घुमाइए, बड़े ही सॉफ्ट, और जैसे आप जैकेट पहनते हैं ना वैसे ये सॉफ्ट नजर आ रहा है। पहले वाला मेंढा जो था उसके थोड़े बाल हार्ड थे, ये बड़े सॉफ्ट हैं। क्या फरमाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। शायद इसके ऊपर से ऊन वगैरह ये उतारी हुई है, तो उतारी हुई है, अभी उतारी, पहले कभी 1 माह हो गया ना इसको उतारे हुए। ये तो पलते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। अच्छा, ये अब ऐसे ही थे सॉफ्ट जब ये अच्छा। बड़े बाल थे ना, जब भी सही। ये माशाल्लाह। कौन सी नस्ल है भाई? इस नस्ल का नाम क्या है? ये ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन की नस्ल है। जी चले नाजरीन, आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत।
لیکن ہم آپ کے لیے انشاءاللہ ایک اور پروگرام لے کر آئیں گے کہ جس کے اندر ہم آپ کو بڑے ہی یونیک جانور دکھائیں گے اور مفتیان اکرام ہمارے ساتھ ہوں گے، زبردست سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، مدنی چینل ہوگا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو وہ قربانی سے بھی جو پیارا نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو وہ قربانی سے بھی جو پیارا